تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS کے منتخب رکن قانون ساز کونسل سوندریا راجو نے حلف لیا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے عبوری صدر نشین سید امین الحسن جعفری نے اپنے چیمبر میں ان کو حلف دلایا۔ راجو نے تیلگو زبان میں حلف لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء تارک راما راؤ، سبیتا اندرا ریڈی، محمد محمود علی کے علاوہ TRS کے ارکان اسمبلی و ارکان کونسل بھی موجود تھے۔ ان تمام نے راجو کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر PCC ریونت ریڈی کو جوبلی ہلز میں حراست میں لے لیا گیا۔ وہ وزیر اعلیٰ کی سالگرہ کے موقع پر احتجاج کے لیے پارٹی ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون جا رہے تھے۔ ریونت ریڈی کے حامیوں نے اس موقع پر پولیس کو ان کو حراست میں لینے سے روکنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے کسی طرح ان کو حراست میں لیتے ہوئے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پولیس نے ریلی نکالنے سے کانگریس پارٹی کے کارکنوں کو روکنے کے لیے گاندھی بھون کے قریب وسیع تر انتظامات کیے۔ ఎవరన్నా చచ్చిపోతే పద్నాలుగు దినాలు మేము ఎంత చదువుకున్న యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయినా కదా సార్, ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయాలి అడ్వకేట్ చెప్పు అవన్నీ నాకు అడ్వకేట్ శతాబ్దినాలు 3 రోజులు జన్మదినాలు 3 రోజులు ఎక్కిపోయింది కదా ఇప్పుడు పోయి సంతోషం వచ్చి దాటి జన్మదినం చేసుకుంటుంది. నేను మొత్తం అన్ని ఊర్లలో నా ఫోటోలు తగిలించి ఘాట్లు ఎక్కించారు కదా, మరి పాపలు ఎక్కించారు. హైదరాబాద్లో సార్ మేరా వీడియో లేదా ఘాట్లు మళ్ళీ పెంచుకున్నాక తర్వాత وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کے موقع پر نامپلی میں تلنگانہ NGOs حیدرآباد ضلع کی جانب سے خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ TRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے اس کیمپ میں حصہ لیتے ہوئے خون کا عطیہ دیا۔ یہ خون تھیلیسیمیا کے مریضوں کو چڑھایا جائے گا۔ تلنگانہ NGOs یونین حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے جانب سے آج بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا، کیونکہ آج ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر جناب KCR صاحب کا آج برتھ ڈے ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ مسلسل 6واں سال یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیے، تو ہر بار کوئی نہ کوئی ایک وجہ سے ہم لوگ بلڈ ڈونیشن کیمپ کر رہے تھے۔ اس سال CM صاحب کی برتھ ڈے یہی ٹائم پہ آنے سے CM صاحب کی برتھ ڈے پہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے جس میں 1000 یونٹس ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک قریب 450 یونٹ ہو گئے صبح سے، اور یہ بلڈ ڈونیشن کا کیمپ آج کویتا میڈم شروع کیے، بعد میں ہمارے ہوم منسٹر صاحب محمود علی صاحب بھی اس میں تشریف لائے، اور چیف جسٹس ہیومن رائٹس جسٹس چندرا صاحب بھی تشریف لائے، اور ہمارے اسٹیٹ کے صدر راجندر اور پرتاپ بھی یہاں پر شرکت کیے، اور دیگر ہمارے جتنے بھی حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے سرکاری ملازمین ہیں، کانٹریکٹ آؤٹ سورسنگ کے امپلائیز ہے، وقف بورڈ کے امپلائیز ہے، لائبریریز کے، یونیورسٹیز کے، پبلک گارڈن کے تمام ہاسپٹل سے بھی امپلائیز یہاں پر آئے۔ ایک خوشی کا ماحول ہے، ایک عید کا ماحول ہے یہاں پر۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا یہ مسلسل 1-2 منٹ ٹھہرے عمر بھائی سے مسلسل تلنگانہ کے رعایا کے لیے، جو غریب غربا رعایا ہے، جو طلباء ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہم لوگ ان کے ساتھ ٹھہرے۔ ہمیشہ تلنگانہ NGOs تلنگانہ کے ریاست حاصل کرنے سے آج تک ہم تلنگانہ کے رعایا کے ساتھ، تلنگانہ کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیے، اور جو آج یہ بلڈ لے رہے ہیں ہم لوگ، جو خون لیا جا رہا ہے، یہ بھی غریب ہاسپٹلس کو، جو تلنگانہ میں 100 سال سے جو غریب غربا کی مسلسل مدد کر رہے ہیں، مسلسل ان کا علاج کر رہے ہیں، جیسے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل ہے، مہدی نواز جنگ کینسر ہاسپٹل ہے، اور تلسیمیا کے پیشنٹس ہے ان کا ایک ایسوسیشن ہے، اور ریڈ کراس سوسائٹی ہے، انسٹیٹیوٹ آف پریونٹیو میڈیسن ہے۔
तो इन तमाम लोगों में बराबर खून बांटा जाएगा। बहरहाल मैं आपके जानिब से हमारे पूरे सरकारी मुलाजिमीन को, हमारे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ को, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव को और प्राइमरी मेंबर्स को और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं उनको, पुलिस डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक अनाउंसमेंट में सौों लोगों, हज़ारों लोग आना बहुत बड़ी बात है। ये पूरा इंतज़ाम किया और इसके बावजूद में भी खाने का भी इंतज़ाम है और शाम तक इंशाल्लाह 6 बजे तक ये कैंप चलेगा। मैं फिर से एक बार आप तमाम का शुक्रिया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफैन पहुंचकर हाज़िरी दी। उन्होंने दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सेहतमंदी के साथ तवील उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर साबिक़ सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह और दीगर मौजूद थे। आपका जन्मदिन है, उसके लिए दरगाह यूसुफैन शरीफन पर दुआ की गई है और यह गरीबों को खाना खिला गया। हमारे महबूब साहब ने प्रोग्राम अरेंज किया और हमारे टीआरएस के तमाम कायदीन उसको सक्सेस किए, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा इस दरगाह पर हर बार आते रहते हैं हम लोग। जब भी हमें कोई खुशी होती है, जब भी हमें कोई मसला आता है तो दरगाह यूसुफैन शरीफन पर आकर दुआ करते हैं। आप अल्लाह के वली है, अल्लाह से दुआ कीजिए, यकीनन हमें तकलीफ जो हो इसे दूर कीजिए। आज हमारे सीएम साहब के जन्मदिन पर खुशी मनाते हुए हम लोग यहाँ आए और यहाँ से दुआ की गई है। ख़ासतौर से यहाँ के इमाम साहब ने दुआ की है कि हमारे आनेबुल सीएम साहब को दराजी उम्र दे, शायद तंदुरुस्ती दे, उन्हें इक़्तिदार पर रखे। उनका इक़्तिदार तेलंगाना नहीं, तेलंगाना से आगे बढ़कर सारे हिंदुस्तान में आए, ये हमारी तमन्ना है, क्योंकि वो एक सेकुलर लीडर है। हिंदुस्तान में ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में जो सेकुलरिज्म लाया गया है उसका सेहरा पहुँचता है तो हमारे आनेबुल सीएम साहब को पहुँचता है। आज हमारा लैंड ऑर्डर और हमारी तरक्की हिंदुस्तान में नंबर 1 है तो हमारी तेलंगाना स्टेट की है। हम भी यही चाहते हैं सारे हिंदुस्तान में तरक्की हो और फ़िरका परस्ती का खात्मा हो। जो पार्टियाँ फ़िरका परस्ती की बात करते हैं वो देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है वो बात, जिसकी वजह से देश बर्बाद हो सकता है, देश टुकड़े हो सकता है, देश के लोग परेशान हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर खासतौर से अल्लाह ताला से दुआ की गई, अल्लाह ताला हिंदुस्तान को तरक्की दे, हिंदुस्तान में अमन कायम रखे और हिंदुस्तान में केसीआर साहब के वैसे लीडर को आगे बढ़ाए ताकि वो हिंदुस्तान में क़यादत करते हुए सारे मुसलमानों के साथ, सारे हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, जितनी कौमें रहते हैं सबके साथ इंसाफ करें और हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाएं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हैदराबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर वक्फ बोर्ड के रुकन के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके साथ पार्टी के कारकुनान के अलावा उनके हामी भी मौजूद थे। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली की अहम सड़कों पर तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। इनकी आज सालगिरह के मौके पर इन सड़कों पर वज़ीर आला के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। वज़ीर आला के हामियों ने दिल्ली की अहम सड़कों पर ये फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला की 3 रोज़ा सालगिरह तक़रीब रियासत भर में बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जा रही है, जिसमें रियासती वज़रा के साथ साथ हुक्मरां जमात टीआरएस के कायदीन और उनके हामियों की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तक़रीब के सिलसिले में मलकपेट के डेफ स्कूल में माज़ूरीन कारपोरेशन के सदर नशीन डी वासुदेव रेड्डी ने एक तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया। टीआरएस पार्टी सोशल मीडिया कन्वीनर वाई सतीश रेड्डी और तलबा इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने केक काटा। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमात का आगाज़ किया। उन्होंने वज़ीर आला की तवील उम्री और सेहतमंदी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह के मौके पर डिप्टी मेयर जीएचएमसी श्री लता ने कैंप ऑफिस के करीब केक काटा। इस मौके पर उन्होंने
KCR को तेलंगाना का नंबर 1 वज़ीर आला करार दिया और कहा कि वज़ीर आला मुल्क में नंबर 1 हैं जो रियासत को तरक्की दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बेमिसाल तरक्की की जा रही है और रियासत तरक्की की राह पर गामजन है। रियासत में कई फलाही स्कीमात के आगाज़ के ज़रिए सुनहरे दौर की शुरुआत की गई है। रियासत में खुशहाली है। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने उनकी तवील और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाएं ज़ाहिर की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज हल्की कशीदगी फैल गई क्योंकि तलबा की 2 तंजीमों के कारकुन एक दूसरे से मुतसादिम हो गए और पुलिस को बीच बचाव करते हुए बाज़ तलबा को हिरासत में लेना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह के सिलसिले में बहुजन तलबा तंजीम के कारकुनों ने NR हॉस्टल के करीब उनका पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसमें हुक्मरान जमात TRS की तलबा तंजीम TRSV के कारकुनों की जानिब से रुकावट पैदा की गई और इस हरकत की मजम्मत करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस मौके पर पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। TRSV कारकुनों ने बहुजन तलबा तंजीम के कारकुनों का ताक़ुब किया और उन पर हमले की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने बीच बचाव करते हुए बहुजन तंजीम के कारकुनों को हिरासत में ले लिया और TRSV के कारकुनों के जज्बात को सर्द किया। बहुजन तलबा तंजीम के कारकुनों ने वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस वाक़े के वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। TRS पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़िदा वज़ीर आला की सालगिरह तक़ारीब के हिस्से के तौर पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने केक काटा और रुकन राज्यसभा केशवराव को खिलाया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ज़िंदगी, उनके सियासी सफ़र पर हिंदी में तैयार करदा डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ साथ रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, मुख्तलिफ हलकों के TRS इंचार्जस और TRS कायदीन के साथ साथ कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। TRS के लीडर विश्वा प्रेम कुमार ने वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर 70 किलो वजनी केक काटा और खून के अतिये के कैंप का भी इफ्तिताह किया। LB नगर के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, MLC मधुसूदन चारी, TRS के कायदीन B दयानंद और दूसरों ने खून का अतिया दिया। इस खून के अतिये को थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दिया जाएगा। LB नगर असम्बली हल्के में वज़ीर आला की सालगिरह की तकरीब के हिस्से के तौर पर सेवा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इसी तरह रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करते रहें। తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ అయిన మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి 68వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఎల్బీ నగర్లో ప్రతి డివిజన్లో కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ కూడా ఈ జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా చైతన్యపురిలో ఈరోజు రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసాం. బ్రహ్మాండంగా చాలామంది ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి జన్మదినం సందర్భంగా రక్తదానం చేస్తూ ఉన్నారు. అన్నదానాలు, రక్తదానాలు, అనాథాశ్రయంలో పండ్ల పంపిణీ, అలాగే హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ, దేవాలయంలో, చర్చిలో, మసీదులలో పూజలు. ఎందుకంటే ఈ మా ముఖ్యమంత్రి ఆయురారోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్ళు జీవించాలి, ఈ రాష్ట్రానికి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇంకా చేయాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ కార్యకర్తలందరం కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారి జన్మదినాన్ని ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకుంటున్నందుకు ప్రతి కార్యకర్త కూడా ధన్యవాదాలు ఈ సందర్భంగా తెలుపుకుంటున్నాను. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर जियागुड़ा में पार्टी ऑफिस में साबिक़ कारपोरेटर M कृष्णा ने आज केक काटा। उन्होंने वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी सेहतमंदी के साथ तवील उम्री के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। इस मौके पर पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में एकमात्र नेतागण और एक मुख्यमंत्री कहलाने वाले चंद्रशेखर राव की 68 जयंती हम उत्सव मना रहे हैं। और TRS पार्टी जब से हुकूमत में आई, हम हर साल नए नए स्कीम के द्वारा इस प्रांत, इस तेलंगाना के अवाम के विकास के लिए रात दिन चौंकते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने विकास के मार्ग को चलाते हुए हिंदुस्तान में एक ऐसा CM बना जो दुनिया में
एक ही एक चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम आदर के साथ चंद्रशेखर राव का नाम लिया जाता है हिंदुस्तान में। आज देखिए, अगर मैं स्कीमों के तफसीला शुरू करूं तो अभी समय नहीं बचता। चाहे बंगारू तेलंगाना के ताल्लुकात से जो मिशन भगीरथा गरीबों को पानी के लिए, मिशन काकतीय एग्रीकल्चर के लिए, जो गरीब लोग बच्चे होते शादी के लिए शादी मुबारक हो, अनेक प्रकार के जो स्कीम के द्वारा आवाम को जो बहुत ही करीब होके उनके हिफाजत के लिए, उनके विकास के लिए उनके साथ हम एक भाई का रूप धारण करके, मामा का रूप धारण करके उन्होंने आज देश में, चंद्रशेखर राव बोले तो इस देश की आत्मा इसी तरह हम लोग बुलाते हैं। तो आज उनके जन्मदिन पे आज टीआरएस पार्टी के जियागुड़े के आदरणीय अध्यक्ष चारी जी और बाबूराव जी के नेतृत्व में हम लोग आज ये कार्यक्रम करें। मैं सभी को दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री का जन्मदिन 3 दिन से लगातार हम मना रहे। आज हम लोग पार्टी ऑफिस में केक कट के उनको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अल्लाह ताला उनके उम्र में और बढ़ाई दे और इसी तरह हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता जैसा चंद्रशेखर जैसे नेता, उसका देश का एक नेता बने, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय के। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर 13 फरवरी को नेशनल कराटे चैम्पियनशिप का इनेकाद अमल में आया था, जिसमें सनशाइन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन ने हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल और टीम ट्रॉफी हासिल की। सैयद सिराज सीनियर रिपोर्टर ने बच्चों की हौसला अफजाई की। मोहम्मद मुबशिरुद्दीन बानी व डायरेक्टर के अलावा अंजुम अहद इंटरनेशनल बॉक्सर व गर्ल्स कोच ने सैयद सिराज सीनियर रिपोर्टर टीटीवी का शुक्रिया अदा किया। सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिरुद्दीन है। मैं ब्लैक बेल्ट 3rd डैन कराटो में हूँ और माशाल्लाह से मैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग कोच और बॉक्सिंग प्लेयर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से संडे चैम्पियनशिप थी सीएम केसीआर कप, जो सीएम केसीआर की बर्थडे के दिन जो है मुकर्रर हुई थी चैम्पियनशिप। ये यूसुफगुड़ा इंडोर स्टेडियम में थी। तकरीबन स्टेट से, इसमें डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें जो है हमारे ओल्ड सिटी से, खिलबत से जो है हमारे पूरे 7-8 बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें माशाल्लाह से सबको कामयाबी हासिल हुई और टीम ट्रॉफ़ी वगैरह लिए। ख़ास तौर से स्पेशली गर्ल्स विथ हिजाब चैम्पियनशिप में बच्चे पार्टिसिपेट करे, लड़कियां, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। और मैं तहे दिल से हमारे सैयद सिराज साहब का शुक्र अदा करता हूँ। हमारे जो है चीफ़ गेस्ट और हमारे बड़े, हमारे जो भी है, हमारे सिराज भाई जो है हमेशा से स्पोर्ट को सपोर्ट करते हुए आए और हमारे सनशाइन गेम्स एंड स्पोर्ट एसोसिएशन को सपोर्ट करते हुए आए। उनकी हिम्मत अफजाई है जो हम लोग यहाँ तक आए और आज आप सब मीडिया के सामने जो है ये सब चीज़ को बयान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनशाइन स्पोर्ट एंड गेम्स एसोसिएशन में लेडी कोच हूँ। रिसेंट 13 फेब को यूसुफगुड़ा पे सीएम केसीआर कप ओपन नेशनल चैम्पियनशिप थी। वहाँ पे ओल्ड सिटी से हमारे क्लब से जो है 8 मेंबर्स पार्टिसिपेट करे थे, उसमें जो कि 4 गर्ल्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबको गोल्ड मेडल आया और हमारे गर्ल्स को जो है टीम ट्रॉफ़ी भी मिली। हमारे हेड कोच मोहम्मद मुबशिरुद्दीन हैं। मैं लड़कियों से गुजारिश करती हूँ कि स्पोर्ट में आगे बढ़े। अपन हिजाब में रहते हुए भी स्पोर्ट कर सकते। हम लोग, हमारे पास जितने भी गर्ल्स हैं वो हिजाब में रहते हुए ही बॉक्सिंग, कराटे, किक बॉक्सिंग सब करते। और मैं खुद भी ओपन इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ और ब्लैक बेल्ट 1st डैन हूँ। मैं टीटीवी न्यूज़ चैनल का और सिराज सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने हमको हमेशा सपोर्ट करते। जज़ाकल्लाह जी। इसके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करे थे, इसमें जूनियर लेवल में थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में उनकी तवील उम्री और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।